Hello students, let's discuss few literary terms. First of all, we will talk about elegy. Now elegy is derived from the Greek word elegies, meaning a song of bereavement sung to the accompaniment of a flute. है ना? दुख भरा गीत जो एक फ्लूट के साथ गाया जाता है, एक बांसुरी के साथ गाया जाता है, इसको एलेजी कहते हैं अगर हम ग्रीक सेंस में बात करें. Present day forms of elegies were introduced in the 16th century. So, elegies cover a wide range of subjects and they have to be written in elegiac meter. उनको elegiac meter में लिखना पड़ता है. Elegiac meter क्या होता है? Sound stress pattern जो prescribe होता है. I talk number of times. In modern times, the definition of elegy has undergone a drastic change. Elegy is based on mournful and reflective themes. कोई चिंता का विषय हो, कोई दुख भरी बात हो, उस सब्जेक्ट मैटर पे भी एलिजी लिखी जाती है ना. सब्जेक्ट मैटर कुड बी मॉर्निंग फॉर द डेड, द फॉल ऑफ फेमस सिटी, अनफुलफिल्ड लव. It is in fact written as a tribute to precious possessions. जो आपके पास बहुत कीमती चीज थी, व्यक्ति था, उसको एक तरह से श्रद्धांजलि देने के लिए एलिजी लिखी जाती है ना. जैसे लेसिडस एक फेमस एलिजी है मिल्टन की, which he has written on the death of King Edward. टेनिसन ने इन मेमोरियम लिखा on the death of his friend Arthur Henry Hallam. So it's a philosophical reflection of the complexities of life. है ना. वहां से फिर पोइट जो है लाइफ की कॉम्प्लेक्सिटीज की बात करने लगते हैं. शैली ने एडोनिस लिखा, which he has written on the death of John Keats, and it's a poet's lamentation for fellow companionship. मैथ्यू आर्नोल्ड ने थेसिस लिखा in memory of his friend A.H. Clarke. So, main characteristics of elegy are the poet presents his thoughts imaginatively in the first person. He raises the question of destiny, justice, fate, and towards the end, a sort of comfort or ease is provided to neutralize the pain of the situation. तो पोएम जब एंड होती है तो फिलोसफिकल से नोट पे होती है, जिसमें कि उस पेन को, उस सिचुएशन की जो पेन है, उसकी जो दर्द है, उस स्थिति की, उस घटना की, उससे थोड़ा सुकून मिल सके. नेक्स्ट इज लिरिक, LYRIC. You must have heard all these terms. Lyric, again it has its roots in Greek poetry. And in ancient Greek poetry, the term lyric was used for a poem sung by a single voice to the accompaniment of a lyre. It's a musical composition expressing a single emotion. It's a subjective poem expressing various moods of the poet. Then melody is given priority over subject matter. मेलेडी को प्रायोरिटी दी जाती है सब्जेक्ट मैटर से. Again, it's a well-knit poem having a definite structure, and then it captures the various moods of the composer also. Furthermore, it makes a strong appeal to the intellect through heart-touching emotions. Or to Skylark is a very beautiful lyric, and this single poem has made Shelley as the supreme singing god in the realm of literature, and it is of moderate length. Robert Herrick's Blossom, Wordsworth's Daffodils, The World is Too Much with Us. ऐसा अपने को नहीं पता चलता ना कि भी ये पोएम गीत है,
लिरिक का मतलब क्या होता है? गीत। कैसे पता चले इंडियन स्टूडेंट्स को, कैसे पता चले कि ये लिरिक है? कैसे पता चलता है हमें? वेयर द इंटेंसिटी ऑफ फीलिंग इज देयर, जहाँ पे भावना की अभिव्यक्ति गहराई से की गई है, तो वहाँ एक्सप्रेशन अपने आप ही स्पॉन्टेनियस हो जाए, है ना? एक फ्लो में अपने आप एक्सप्रेशन आता है। और उसकी रूट क्या है? मेलनकली, दुख। और दुख कब होगा? जब चिंतन, जब जिंदगी में दुख आएंगे, परेशानी आएगी, विपदा आएगी, तो अपने आप चिंतन करना करोगे, तब आप अपने आप सोचोगे वो चीज, वो फीलिंग, वो दुख, वो परेशानी अंदर तक छुएगी, है ना? तो फीलिंग एंड रिफ्लेक्शन की जब इंटेंसिटी होएगी, तो एक्सप्रेशन अपने आप अच्छा निकलता है, अच्छी लैंग्वेज, अच्छे वर्ड्स, अच्छे से फ्लो अपने आप आ जाता है। दीज टू आर द बेसिक कंडीशंस, इंटेंसिटी ऑफ फीलिंग एंड स्पॉन्टेनिटी ऑफ एक्सप्रेशन। और टू स्काईलार्क में शैली ने बोला, आवर स्वीटेस्ट सॉन्ग्स आर दोज दैट टेल अस ऑफ द सैडेस्ट। जिंदगी का मधुरतम गीत वही है जो दुख भरा है। जो जितना ज्यादा दुख भरा गीत है वो उतना ही स्वीट है। देखते हो आप, जब बहुत दुख परेशानी होती है तो लोग अपने आप ही शायर बन जाते हैं, चाहे उन्होंने शायरी पढ़ी हो ना पढ़ी हो, कभी पोइट्री भी नहीं पढ़ी होगी, कभी इतने पढ़े लिखे भी नहीं होंगे, लेकिन उनका जो बात करना होगा, उनका जो बोलना होगा, उनकी हर लाइन अपने आप इतनी खूबसूरत होगी कि तुम्हें लगेगा कि ये तो पोइट है ना? शायरी अपने आप आ जाती है, शायरी पोइट्री अपने आप आ जाती है। दैट मेक्स पर्सन लिरिक। तो जब आप पोएम पढ़ते हो, तो हालांकि इन सब चीज़ों के लिए क्या है, सेंसिटिविटी होना जरूरी है। अगर आप सेंसिटिव हो, आप में परसेप्शन है फॉर थिंकिंग एंड फीलिंग, देन यू विल सी कि पोएट ने कितनी डेप्थ से बात। नेक्स्ट इज द ओड, ODE, ode, ode to beauty, ode to skylark, ode to nightingale, ode on Grecian arm, कितनी सारी poems हैं। तो ओड क्या होता है? ओड भी लिरिक की तरह से ही होता है, इट हैज इट्स रूट्स इन ग्रीक पोएट्री। इसका लिटरल मीनिंग क्या है? सॉन्ग। So it is a long, formal, ceremonious lyric. ओड का मतलब ऐसा होता है एड्रेस करना, संबोधित करना, and it often celebrates a person, thing, or idea. And the important characteristics go like this: that the treatment is grand, serious, dignified. It expresses a deep and serious emotion in an elaborate and impressive. Hence, it is longer than. So it is written in the form of an address. Address किसको किया है? To a person or object. Or to the west wind. West wind को address कर रहा है poet वहाँ. Or to skylark. Skylark को address कर रहा है. Or to beauty. Beauty को address कर रहा है. So the poem opens with an apostrophe. And the theme of the ode is sometimes based on an important event of public interest, like the death of a renowned person, anniversary of a national event, or the founding day of a famous university. That was all about ode. And the last is tragicomedy. Tragicomedy. Now, what is a tragicomedy? It is a type of dramatic. This is a type of dramatic genre that blends the tragic and
comedic elements to lighten the overall atmosphere of the drama. It builds up a situation in such a way that the protagonist finds himself on the verge of disaster. But then events take a sharp turn and the drama ends. And it involves the characters of a high class as well as low class. Let me tell you through an example. And the famous tragicomedy is Merchant of Venice. Merchant Shylock is a Jew. Antonio is a Christian. Antonio is a merchant of Venice. He is the richest person. So he had borrowed 3,000 ducats from Shylock to give his friend Bassanio. Bassanio needs money because he is to marry Portia. Now, the condition is that Shylock, Antonio should give the money to Shylock within 3 months. He should return the money within 3 months. Otherwise, he will have to give 1 pound of flesh from the nearest of his heart. कि उसको उसके पैसे 3 महीने के अंदर अंदर वापस करने हैं, नहीं तो उसको अपने दिल के पास से 1 पाउंड फ्लैश मांस का टुकड़ा देना पड़ेगा. और एंटोनियो बिल्कुल तैयार हो जाता है क्योंकि उसके शिप्स अब्रॉड गए हुए हैं और वो रिटर्न आने वाले हैं वापस. उसको तो 3 महीने तक तो आराम से आ जाएंगे और उसके पैसे उसको वो दे देंगे. लेकिन क्या हुआ, तो आए नहीं. शायलॉक यहूदी है, एंटोनियो क्रिश्चियन है. क्रिश्चियंस और ज्यूज के आपस में उस टाइम पे बहुत ज़्यादा कन्फ्लिक्ट चल रहे थे. तो क्रिश्चियंस जो हैं वो ज्यूज के दे यूज टू स्पिट ऑन देयर फेसेस आल्सो, दे यूज टू कॉल देम नेम्स आल्सो. उनको गाली गलौज भी करते थे, उनके मुंह पे थूकते भी थे. इतनी ज़्यादा बहुत सारी उनमें आपस में दुश्मनी. शायलॉक को तो रिवेंज लेना था, बदला लेना था एंटोनियो से, इसलिए उसने ये कंडीशन ले डाउन की थी. और एंटोनियो इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंट था कि उसको था कि उसके शिप्स तो हालत में वापस आ ही जाएंगे. अब शिप्स तो आए नहीं. ही इज बिहाइंड द बार्स, है ना, जेल की सलाखों के पीछे होता है जेल में. तो वो अपने फ्रेंड बेसेनियो को कहता है कि ऐसे ऐसे वो आखिरी बार मरने से पहले उसको मिलना चाह रहा है, ये वो. तो मुकदमा चलता है. तो पोर्शिया जिससे एंटोनियो ने बेसेनियो ने मैरिज की थी, उसका कज़न लॉयर होता है. तो वो किसी तरह से जज से परमिशन लेके वो वहाँ पे कोर्ट में एज ए जज एज ए लॉयर एंटर होती है. शायलॉक को बहुत कन्विंस करते हैं, मुकदमा चल रहा है. तो बेसेनियो 3 टाइम्स मनी जितना उसने शायलॉक ने दिया होता है उसका 3 गुना पैसा वापस करने को तैयार होता है. लेकिन शायलॉक को तो एंटोनियो को मारना है, उसने तो क्रिश्चियन से रिवेंज लेना है. तो वो कहता है कि नहीं नहीं, वो नहीं लेगा. उसको तो बस वो चाहिए जो कंडीशन लिखी थी और उसको 1 पाउंड फ्लैश लेना है, पैसा. पोर्शिया भी बहुत कन्विंस करती है, नहीं मानता वो. तो फिर वो कहते हैं कि भी ठीक है, 1 पाउंड फ्लैश मिल जाएगा, मांस का 1 पाउंड का टुकड़ा उसको मिल जाएगा. लेकिन उसने कोई सर्जन बुला रखा है. कहता है सर्जन, सर्जन किस लिए? द प्रोविजन ऑफ सर्जन इज नॉट मेंशन्ड इन द बॉन्ड. सर्जन की तो बात ही नहीं गई हुई. उसने कहा ठीक है, सर्जन की नहीं गई हुई. तो फिर वो कहती है कि भी बॉन्ड के अंदर तो फ्लैश लिखा है, ब्लड नहीं लिखा. इसलिए while cutting the flesh, if one drop of Christian blood is shed, then he will have to pay back with his life. कि बॉन्ड के अंदर तो खून लिखा है, खून नहीं लिखा, सिर्फ मांस लिखा है. तो इसलिए अगर 1 पाउंड मांस काटते हुए 1 बूंद भी खून बह गया तो शायलॉक को अपनी जिंदगी से उसको पे बैक करना पड़ेगा. अब शायलॉक पीछे बताता है. तो तुमने देखा पहले कैसे ट्रेजिक सिचुएशन बन गई थी कि भाई नहीं होता, कहता मैं तो 1 पाउंड फ्लैश ही लूंगा. मैं वो मानता ही नहीं है. वो अपना बल्कि वो कहते ठीक है, ही हैज एवरी राइट टू गेट 1 पाउंड ऑफ फ्लैश. वो अपना चक्कू तेज करता हुआ आगे बढ़ता है एंटोनियो की तरफ. फिर वो कहते रुको रुको. तो जब वो चक्कू लेके आगे बढ़ रहा होता है तब सारे ऑडियंस जो भी उसके फैंस होते हैं, जो भी सीन होता है, सब घबरा जाते हैं कि ओहो ऐसे कैसे, तो एंटोनियो मर जाएगा तो बहुत बड़ा इनजस्टिस है.
और जब वो एक ही क्विबल से टेबल्स आर टर्न्ड अगेंस्ट हिम, अगेंस्ट शायलॉक, तो सब खुश हो जाते हैं. दिस इज व्हाट, दिस इज ट्रेजी कॉमेडी. आई होप नाउ यू मस्ट हैव अंडरस्टूड इट थोरली व्हाट इज ट्रेजी कॉमेडी, जहाँ पे सिचुएशन बिल्कुल ट्रेजिक हो गई और फिर झटके से टर्न हुआ और सिचुएशन वापस कॉमिक बन गई, है ना. That was all about the literary terms. Now we have now finished all the literary terms of your first year syllabus, paper 1.